ગુડ મોર્નિંગ સર. સર 12 વાગે મયુરી મેમ નો લેક્ચર છે. 12 વાગે મારે તો કાલે વાત થઈ હતી સર સાથે તો ના પાડી હતી જીઆર પટેલ સરે. મયુરી મેમ નું. So we will carry on, okay? So today we will see a Gauss forward and backward interpolation formula. Okay? So let's begin this practical. So Gauss forward and backward interpolation formula. So this is an interpolation. In the last practical we have seen Newton's forward and backward interpolation formula. So today we will see Gauss forward and backward interpolation formula. Okay, so this interpolation formula is useful when we want to find out value fx where x lies in the middle of the table. Okay, so the title of the practical is this. Mute yourself. Gauss forward and backward interpolation formula. So this is a very important, okay, interpolation formula for equispaced data. So Gauss forward and Gauss backward interpolation formula can be applied or can be applied to find out value of fx where x lies in the middle of the table. So when we can apply Newton's forward interpolation formula, or when it is convenient to apply Newton's forward interpolation formula, when we want to find out fx where x lies in the starting of the table or in the starting part of the table, or it is, and we apply Newton's backward interpolation formula when x is x lies in the end of the table. Okay, now suppose x is in between table, then it is suitable or it is convenient to apply Gauss forward or backward interpolation formula in order to find better approximation of fx. Okay, so in Gauss forward and backward interpolation formula, we need central difference table. So first of all, let me prepare central difference table. So what is central difference table? Let us see. So this is x and this is y, or y equal to fx. Okay, this is delta y, this is delta square y, this is delta cube y, this is delta 4y, delta 5y, delta 6y, delta 7y, and delta 8y. Now let me put the values. X minus 4, x minus 3. We begin from x minus 4, then x minus 3, then x minus 2. સર સ્ક્રીન નથી દેખાતી. Wait a minute, let me see.
Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is Gauss forward and backward interpolation formula. So last time we have seen Newton's forward and backward interpolation formula. Okay. So Gauss forward and backward interpolation formula can be applied to find out fx where x lies in the middle of the table. Okay. So in order to apply Gauss forward and backward interpolation formula, we need central difference table. Okay. So now let me prepare let me prepare central difference table. Okay. So I will start x from x minus 4, then x minus, these are just labels, x minus 4, minus 3, minus 2, minus 3, minus 1, I should write here minus 1, okay. Then x0, then x1, x2, x3, and x4. Now corresponding to this, these are the values. Okay, now what should I write in this place? Y minus 3 minus y minus 4. So delta y of minus 4. I am subtracting y minus 4 from y minus 3. So this is delta y minus 4. Then this is delta y minus 3. And this is delta y minus 2. This is delta y minus 1. This is delta y0. This is delta y1. This is delta y2. And this is delta y3. Now, what should I write here? Can anybody tell me? Delta 2y minus 4. I am subtracting this number from this. Delta 2 y minus 3 and delta 2 y minus 1. Delta, here I should write minus 2. Can anybody tell me what should I write here? Subtract delta y minus 1 from delta y0. So what is the answer? किसी को पता है? लास्ट टाइम हमने ये प्रिपेयर किया था ऐसा टेबल. डेल्टा 2 y माइनस 1. ये नहीं पता है आपको? What is delta y1? y2 minus y1. We are subtracting y1 from y2. What is delta y3? y4 minus y3. ये आपको नहीं पता है? So now tell me, what should I write here? Delta 2 y0. Here y1. Here what should I write? Delta cube y minus 4. Now tell me, what is this entry? तो बता सकेगा यहाँ मुझे क्या लिखना है? Delta 4y minus 4. Yes. Just wait a minute.
So, hello, mute yourself. Yash, Jitendra Kumar. यहाँ पे मुझे सब दिखाई देता है. प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ इन माई क्लास नेक्स्ट टाइम. स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। Yes, sir. और मयूरी मैडम का लेक्चर कैंसिल हो गया. मैंने GR पटेल सर से बात कर ली है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सर का ही फोन था अभी, मैंने सर से बात कर ली है, GR पटेल सर से. सो वी विल फिनिश दिस प्रैक्टिकल. तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? व्हाट शुड आई राइट हियर? डेल्टा 4 y minus 3, फिर डेल्टा 4 y minus 2, डेल्टा 4 y minus 1. Here delta 5y minus 4, delta 5y minus 3, delta 5y minus 2, delta 5y minus 1. Here delta 6y minus 4, here delta 6y minus 3, delta 6y minus 2. Okay, here delta 7y minus 4, delta 7y minus 3, and this is delta 8y minus 4. So this is known as central difference table. Okay, now suppose your x is lies between x0 and x1. Suppose x is somewhere here, so it is in the center of the table. See, you can see x is not somewhere here, or x is not somewhere here. X means the value at which we want to find fx. Okay, so suppose let us assume that x is lies between x0 and x1. Suppose we want to find fx where x0 less than x less than x1. Now what is h? H is, last time we have seen, h is nothing but xn minus xn minus 1. So consecutive difference of xi's, it is known as h. We have taken h. So therefore from this h is x1 minus x0, x2 minus x1. Okay, and we take mu equal to x minus x0 by h. See, h can be find by this formula, and how can we find mu? Mu equal to x. What is x? जिस पॉइंट के आगे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसे हम x, इसको हम x बोलेंगे. तो x माइनस x0, x0 मीन्स दिस वैल्यू. ठीक है, जो छोटी वाली है ना, ये x में से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करनी है, x माइनस x0 और अपॉन h. वी से दिस टू बी न्यू पैरामीटर. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यू कैसे फाइंड करना है. दिस इज माई न्यू एंड दिस इज माई h. ओके, नाउ गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज so how can we find out Gauss forward interpolation formula? So this is the formula. I want to find out fx. So fx is given by fx is equal to, let me write down the formula.
Let me change the color of pen, but I couldn't change the pen color. So let me refresh the computer. Okay. Fine. So fx is equal to y0 plus mu c1 delta y0 plus mu c2 delta square y minus 1 plus mu c3 delta cube y minus 1 mu plus 1. Here I should write mu plus 1 c3, okay, not mu c3. Here mu plus 1 plus again mu plus 1 c3 delta 4 y minus 2, and now 2 times mu plus 1, now 2 times mu plus 2, mu plus 2 c4 plus mu plus 2 c4. Then can anybody tell me what should I write? Mu plus 3, here 5, here 6, here mu plus 3 2 times, 6, then 7, and so on. This goes on and on. So mu plus 2 c4 delta 4 y minus, let me see again, mu plus 1 c3 delta 3 y minus 1 mu plus 1 c, here I should write 4. I have made one mistake here, 4, I should change all the numbers. So this is 3, then this is 4, then 5, 6, 7, 8. So here delta 5 y minus 2, here delta 6, here delta 7, here delta 8, but the number, what should I write here? Delta 5 y minus 2, this is what delta 6 y minus cc. Y minus 2 comes 2 times. Okay, similarly y minus 3 comes 2 times. Here what should I write? Y minus 4. कोई बता सकेगा इसके आगे कौन सा स्टेप आएगा? By watching the pattern you can see, you can say. Please, can anybody tell me what is the next step in this formula? See, mu plus c comes 2 times. So what should I write here? Mu plus 4. Here 8, so I should write here 9. Here delta 8, so delta 9. Now, by looking at pattern, see, y0, y0, minus 1, minus 1, minus 2, minus 2, minus 3, minus 3, minus 4. So tell me, what should I write here? मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? y minus 4. Yes, very. समझ में आया फॉर्मूला? ये जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. आपको एग्जाम में तो ये फॉर्मूला शीट दी होगी, तो उसमें से ये फॉर्मूला शीट में आपको लिख के ही जाना है, ठीक है? याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द टेक्निक टू रिमेंबर द फॉर्मूला. ओके, so this is known as Gauss forward interpolation. What is y0? y0 यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं. वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू x0 इज y0. देन डेल्टा y0 इज दिस. बाद में कौन सी वैल्यू है? डेल्टा square y minus 1. So where is delta square minus 1? It is somewhere here. Okay, so y0, delta square minus 1, then delta cube y minus 1. See, ये आपको टेबल में से फाइंड करनी है. ये वैल्यूज है ना, ये आप कहाँ से निकाल सकेंगे? दिस वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द सेंट्रल डिफरेंस टेबल. म्यू कहाँ से मिलेगा आपको? तो कि म्यू इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h यहाँ से. तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? fx. ठीक है,
तो ये प्रश्न उठता है कि भाई हमें ये कैसे डिसाइड करने हैं कोफिशिएंट, उसकी भी मैं टेक्निक आपको बताता हूँ, बट जस्ट वेट, लेट मी राइट डाउन गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. Let me change the color. We want to find out fx. Fx is equal to y0. Now I am writing, I am going to write Gauss backward interpolation formula. It comes from mu c0. Mu c0 is nothing but 1, y0 plus mu c1 delta y minus 1. So this begins from y minus, y0 comes only one times, okay. Now mu plus 1, mu comes two times, so therefore mu plus 1 c2 delta square y minus 1. Again I should write mu plus 1 c3 delta cube. See, minus 1 comes two times, so let me write down here y minus 2. Okay, so this is mu plus 2 c4 delta 4 y minus, can anybody tell me what should I write here? Minus 2 2 times minus 2. Okay, understand? Do you understand? Again mu plus 2 c5, what should I write here? Delta 5 Delta y 5 minus 5. minus 3. 2. minus 3. Y See, minus 3. 3, yes, very good. Because minus 2 comes two times, now it turns off minus 3. So delta 5y minus 3. Now mu plus 3, because I have written mu plus 2 two times, so mu plus 3 c6 delta 6. I should write here y minus 3. तो ये आपको fx ऐसे मिलेगा. तो आपको ये प्रश्न उठता है कि भाई म्यू कैसे निकालेंगे, तो कि म्यू इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे आप x माइनस एक्स 0.8. ठीक है, तो ये डेल्टा y0 डेल्टा y माइनस 1 वो टेबल में से आप निकालेंगे. ठीक है, तो ये प्रश्न उठता है कि ये कैसे लिखे, इसकी कोई टेक्निक है डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल हम कैसे पुट करेंगे. तो मैं जो ये खास ध्यान में रखिए, ये कैसे डिफरेंस टेबल तो आपको आता है बनाना, लेकिन ये वैल्यूज कैसे पुट करेंगे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि आप जब वो नंबर वाला टेबल बनाएंगे तो वहां पे ये नंबर नहीं लिखे होंगे. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? देखिए मैं आपको समझाता हूँ. लास्ट टाइम वाला जो प्रैक्टिकल था ना, उसमें हमने ये देखिए न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. तो देखिए ये मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस टेबल है, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. यहाँ पे देखिए आप, ये कहाँ गया एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है कि ये डेल्टा ये y0 है, ये डेल्टा y0 है. हमने क्या किया था, वी हैव जस्ट रिटन दिस फॉर्मूला एंड ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट की थी. y0 कैसे लिखी थी, तो कि ये वाली 1, देन आई हैव पुट 7 12 6. सी 1 7 12 6. समझ में आ रहा है मैं जो समझाने जा रहा हूँ? और बैकवर्ड में देखिए, बैकवर्ड में मैंने क्यों कौन सी वैल्यू कंसिडर की थी, ये वाली पिछली वाली. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए it begins from 512, so it is 512 then 169 42 6. I mean to say टेबल में कहीं पे ये सफिक्स नहीं दिया होगा कि ये तुम्हारा डेल्टा y0 है या डेल्टा y1 है, डेल्टा y माइनस 1 है एक्सेट्रा. तो प्रश्न ये उठता है कि भाई हमें ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल में गॉस, ये तो मैंने आपको टेक्निक बता दी थी कि भाई ये वाली कंसिडर कब करनी है न्यूटन्स फॉरवर्ड में, ये वाली कब कंसिडर करनी है न्यूटन्स बैकवर्ड में. तो ऐसी कोई टेक्निक्स है
गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला? तो आंसर इज यस। मैं वही आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा डिफरेंस टेबल है। तो जब आप गॉस, हमें y0 से बिगिन करना है। कहाँ से बिगिन करना है? y0 से, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। गॉस फॉरवर्ड में पहले कोफिशिएंट निकालते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड में हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, y0 से स्टार्ट करेंगे, ये y डेल्टा y0। बाद में हम अप एरो लेंगे, डाउन अप डाउन, ऐसा है। यहाँ पे आया तो डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, फिर से मैं डाउन एरो लूँगा, फिर से मैं अप एरो लूँगा, फिर से मैं डाउन एरो लूँगा, फिर से अप डाउन अप। तो ये जो है ये यूजफुल है कौन? गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए आप कोफिशिएंट देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। पहले देखिए y0 है, y0, देन डेल्टा y0, डेल्टा y0, डेल्टा 2y माइनस 1, डेल्टा 2y माइनस 1, डेल्टा 3y माइनस 1, डेल्टा 3y माइनस 1, डेल्टा 4y माइनस 1। तो ये आपको टेक्निक समझ में आई सभी को? गॉस फॉरवर्ड में हम डाउन एरो से स्टार्ट करेंगे, y0 के नज़दीक से। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। और ये जब टेबल आप प्रिपेयर करते हैं आपकी नोटबुक में, तो आपको कैसे लिखना है टेबल? हर लाइन पे ये देखिए एक लाइन ड्रॉप करनी है, ये इसमें आपने लिख दी वैल्यू, बाद में ये छोड़ देनी है, बाद में ये लिखनी है, बाद में एक लाइन छोड़ देनी है, बाद में ये एक लाइन छोड़ छोड़ के डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करना है। तो बाद में जब आप नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो जो बीचली वाली लाइन है छोड़ दी उसमें आप डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे बाद में। ऐसे समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ आपको? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. Now, so this is Gauss forward interpolation formula. So now let me show you Gauss backward interpolation. वहाँ पे भी y0 से स्टार्ट होता है, देखिए Gauss backward में। So I should begin with y0, लेकिन वहाँ पहले अप एरो से स्टार्ट होता है, अप एंड डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो बैकवर्ड में अप एरो से स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड में डाउन एरो से, बाद में अप डाउन अप डाउन। तो यही याद रखना है। क्या सिर्फ याद रखना है? फॉरवर्ड में डाउन एरो से स्टार्ट होता है और बैकवर्ड में अप एरो से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? बाद में तो आपको डाउन अप करके ये कोफिशिएंट डाल देने हैं सीधे सीधे फॉर्मूला में, टेबल में ये वैल्यू। तो म्यू तो आपको पता है, ठीक है। So do you understand? Now let me take one example so you will get clear cut idea. So example first, use Gauss forward and backward interpolation formula to compute f 1.315 from the following table. So we want to compute value of f at 1.315. So table is given, this is x and this is fx. So let me write down values of f. 1.0 at 1.0 1.54308, 1.54308,
Then 1.1 value is given 1.66, 852. Then 1.2, 1.81, 066. And 1.3, at 1.3, 1.970, 97091. At 1.4, 2.15, 090. 1.5, 2.35, 241. Then 1.6, 2.57, 746. So this is the table. I want to find out F at 1.315. So now you can see F 1.315 lies between 1.3 and 1.4. See, look at this. ये कहाँ पे बिलोंग करता है? 1.3 और 1.4 के बीच में बिलोंग करता है. इट इज नॉट समवेयर हियर और इट इज नॉट समवेयर हियर. ये टेबल के शुरुआत में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, ये बीच में है. So which formula we should use? Either we should use Gauss forward and Gauss backward. Both formula can be used to find out this value. Okay. So before applying this formula we should prepare difference table. ठीक है, तो सेंट्रल डिफरेंस टेबल हमें पहले प्रिपेयर करना है. प्लीज कीप साइंटिफिक कैलकुलेटर along with you and calculate this value. This is x, y, this is delta y, this is delta square y, this is delta cube y, delta 4y, delta 5y, and delta 6y. Okay, so what are the values of x? First of all, x is given 1.0, 1.1, 1.2. So now leave this line. 1.3, leave this line. 1.4, leave this line. 1.6 and 1. Okay, 1.6. 1.6 is the last value. Okay, so we stop from 1.6. So what is y for 1.0? So this is your y. So what should I write here? 1.54308. Here 1.66852. Here I should write 1.97091. Here 2.15090. 2.35, 241. 1.6, 2.57, 746. So now what is delta y? Now subtract this from this. So can anybody tell me what is this value? Is it true? 0.12544. Subtract this from this. 1.66852 minus 1.54308. ये आ रहा है आंसर 0.12544. मैं आपको पूछ रहा हूं, आ रहा है ऐसा? यस सर. ओके, बाद में क्या आएगा देखिए, 0.14214 ये है. नेक्स्ट वैल्यू इज 0.16025. then you will get 0.17999. then you will get 0.20151. the last value is 0.2. okay, sorry, I have made one mistake. I've forgotten to write 1.5. okay, so let me correct. Up to 1.4 it is okay.
1.4 value is this is 1 point, this is y0, this is y2. Okay, I have made mistake. आपको मुझे बोलना चाहिए कि I have done this mistake. See, I should write here 1.5 and then 1.6. So corresponding to 1.2, this is at 1, this is 1.152, 1.810, okay, then corresponding to okay, 66, then 1.97091, then 2.15090, 2.35, 241 and 1.6, 2.57746. Now tell me, subtract this from this. So what is the answer? 0 point. Is it true? Then 0.16025, 0.17, 999, 0.20151, 0.22, 505. Now tell me this number. Subtract this from this. 0.0167. And 0.01811. 0.01974. 0.02152. This is 0.02354. Now let me write down delta 3 by 0.00141, 0.00163, 0.00178, 0.00202. Now let me write down this delta 4y 00022, 00015, 00024. So this is minus 0.000 4 times 0 and 7. This is 0.00009, 0.00016. ये है आपका डिफरेंस टेबल. ठीक है, मुझे कौन से पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है? मुझे दिया हुआ है कि मुझे कौन से पॉइंट पे फाइंड, इसे हम x बोलेंगे, x इक्वल टू 1.315. जिस पॉइंट के आगे आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसको हम x बोलेंगे, इसको हम x बोलेंगे. x इक्वल टू 1.315, 1.315. लेट मी राइट डाउन हियर. x इक्वल टू 1.315. ये पॉइंट के आगे हमने. What is h? H is any consecutive difference, difference between any xi. It remains constant all the time if you subtract this from this. Now look at this. By the way, what is your x0? See, note that 1.315 lies between 1.3 less than 1.315 less than 1.4. So we
say this to be x0 and this to be x1. समझ में आ रहा है मैं जो समझाने जा रहा हूं आपको? हम x0 किसे बोलेंगे? x0 इक्वल टू दिस and x1 equal to this. So corresponding value we say this y0 and this y1. ये आपको टेबल में लिख देनी है, दो ही लिखने हैं, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बताइए मुझे h क्या आएगा यहाँ पे? h इक्वल टू x1 माइनस x0 सिंस दिस इज इक्वी स्पेस्ड डेटा, तो x1 इज 1.4, दिस इज 1.3, so 0.1, therefore h equal to 0.1. ठीक है, एंड ये है आपका x. तो नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट म्यू? म्यू का फॉर्मूला क्या है? x माइनस x0 अपॉन h. तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1.315. x0 हमने क्या लिया है? 1.3 और h क्या है? 0.1. तो ये आंसर कितना आएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? बताइए कैलकुलेट करके। 0.15 0.015 upon 0.1. So the answer is 0.15. Therefore your mu is equal to 0.15. समझ में आया क्या? ये अभी तो ये इतनी ही चीज़ इम्पोर्टेंट है और बाद में आपको टेबल कैसे कंसिडर करना है यही चीज़ इम्पोर्टेंट। बाकी तो फॉर्मूला शीट तो आपको दी हुई है। देखिए मुझे कौन सा पहले हम गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से अप्लाई करते हैं। तो ये मुझे फॉर्मूला क्या है? गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन ये फॉर्मूला आपको लिखना है। देखिए मैं यहाँ से लेता हूँ, ये है आपका गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये है मेरा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एफ एक्स, तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स, एक्स कितना है? एक्स मुझे क्या लेना है? 1.315 इक्वल टू y0। y0 क्या आएगा? देखिए ये आपको इस ये म्यू c1 की कितनी वैल्यू होगी? देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? लेट मी राइट डाउन। y0 म्यू c1 म्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल, म्यू c2 म्यू इंटू म्यू माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, म्यू प्लस म्यू प्लस 1 c3, so म्यू प्लस 1, then I will subtract 1 from this, so म्यू and म्यू minus 1 by 3 factorial, that is 6, delta 3y minus 1, then plus म्यू plus 1 म्यू minus 1 and म्यू minus 2 upon 4 factorial means 24, delta 4y minus 2 plus now म्यू plus 2 म्यू plus 2, then म्यू plus 1,
and mu minus 1 and mu minus 2 upon 5 factorial means 120 delta 5 I minus 2 and so on. Okay, so now let me put this value. What is y0? So this is 1.315 is equal to y0. So see, look at this table. Y0 is this. So we are applying Gauss forward. So first arrow is down arrow. So this is down, then up, down, up, down, up. So this is Gauss forward interpolation formula. So what are the values of y0 and deltas? So first value is this. Y0 is 1.97091. So I should write here 1.97091. Then mu is 0.15. I have found delta y0. Now what is delta y0? Means this 0.17999. So I should write here 0.17999. So this term is thing. Now let me put this. Mu is 0.15, then 0.15 minus 1 by 2. Okay, delta 2 y minus 1. So what is the value of delta 2 y minus 1? This is your delta 2 y minus 1. यहाँ पे देखिए आप टेबल में से कहाँ कैसे पता लगाएंगी कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है. तो ये जो एरो वाला है वही लेना है. 0.1974. So here 0.01974. समझ में आ रहा है सभी को ये? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? यस सर। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है. ये मैंने जो ड्रॉ किया है ना पिक्चर, ये पिंक कलर में, यहाँ से यहाँ, 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 ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जिगजैग आ रहा है. ठीक है, ये एरो यहाँ पे नहीं लगा देना है. ऐसे लगा देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी. इसको खा नहीं जाना है. भूख लगी हो ना तो कुछ खाना खाना है. ये खाने की जरूरत नहीं. ये क्या करेंगे, यहाँ से कन्वीनियंट होता है ना लाइन ड्रॉ करना है. ऐसे नहीं करना है भाई. तो ये देखिए, ये वैल्यू कौन सी है, बाद में ये वाला लिखते हैं. ये न्यू प्लस 1, 1.15 प्लस 1, 0.15 and then 0.15 minus 1 upon 6. तो डेल्टा 3 में कौन सी लेनी है? देखिए डेल्टा 3, तो ये 0.00178. ठीक है, बाद में आपको देखिए न्यू, ये 3 वाली थी ना, ये 4 वाली, न्यू प्लस 1. ठीक है, तो कौन सी वैल्यू लिखनी है हमें बाद में देखिए. ये न्यू टू न्यू माइनस 1, ये न्यू प्लस 1, 6 वाली होते. So what should I here write? 0.15 plus 1, 0.15, 0.15 minus 1 and 0.15 minus 2 अपॉन में कितने आएंगे? 4 फैक्टोरियल मीन्स 24. और यहाँ पे क्या आएगा देखिए,
0.00178 के बाद में कौन सी वैल्यू है? ये है 00015, ये मुझे लिखना है यहाँ पे। बाद में कौन सा टर्म आएगा देखिए, ये म्यू प्लस 2, म्यू कितना है 0.15 प्लस 2, देन म्यू प्लस 1, 0.15 प्लस 1, देन म्यू 0.15, and 0.15 minus 1, 1, 2, 3, 4, and then 0.15 minus 2, तो 5 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, अपन में कितने आएंगे देखिए, 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, ठीक है। ये डेल्टा 5y माइनस 2, तो ये मैंने लिखी थी 0.015 वाली लिखी थी ना, तो उसके बाद में कौन सी एंट्री है 0.4 टाइम्स 09, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है 1, 2, 3, 4, 9, और एक टर्म मुझे लिखनी है, देखिए लास्ट वाली कौन सी है, ये 16 वाली, तो ये देखिए यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, ये 120 5 6 फैक्टोरियल वाली, तो ये देखिए ये 5 फैक्टोरियल तब तो मैंने लिखा था 6 में, यहाँ पे म्यू प्लस 1 है, यहाँ पे म्यू प्लस 1 तो 2 बार आ गया, तो म्यू प्लस 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे 0.15 प्लस 2, 0.15 प्लस 1, 0.15, 0.15 माइनस 1, 0.15 माइनस 2, 0.15 माइनस 3, अपन में कितने आएंगे इसके, अपन में बता सकते हैं कोई? 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। वेरी गुड, 720, so I should write here 720। और ये लास्ट वाली एंट्री कितनी है 0.0, ये 0.0016, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, इससे आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। मैं सारी कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग दी आंसर। ये आंसर आएगा आपका 1.99660834। ये F 1.315 कितना आ रहा है 1.99660834, ये है, देखिए। Do you understand how to apply the formula? अब कौन से फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे, ये तो मैंने लिखा था गॉस फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ लेट मी यूज गॉस बैकवर्ड। हम गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखते हैं, देखिए भाई ये कैसा है फॉर्मूला, तो कि ऐसा है, देखिए यहाँ पे ये रहा गॉस फॉरवर्ड और ये रहा गॉस बैकवर्ड, ठीक है। तो ये ठीक है। तो लेट्स पुट दिस वैल्यू, ये देखिए पहले म्यू y0 लिखना है, तो y0 टेबल में से कितनी वैल्यू है y0 की, देखिए दिस इज योर y0,
और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है तो हमें अप एरोज ड्रॉ करने हैं। तो ये y0 है तो पहले अप से स्टार्ट होगा, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ये कौन सा है? ठीक है, समझ में आ गया सभी को? डू यू अंडरस्टैंड? अब हमें कौन सी वैल्यू रखनी है? पहले ये, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? ये देखिए म्यू सी 0 तो क्या हो जाएगा? इट इज जस्ट 1, so y0, what is y0? You can see from the table 1.97091. Then mu c1 means just mu कितना है? 0.50, डेल्टा y1, डेल्टा y माइनस 1, वो टेबल में से यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये पहला वाला एरो वाला 0.16025। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? पहले ये लिखना है, बाद में कौन सी वैल्यू? 1974 वाली, बाद में ये यू। तो लेट मी पुट ऑल दिस वैल्यू हियर। तो ये क्या आ जाएगा? 0.16025। देन ये देखिए फॉर्मूला में क्या है? म्यू प्लस 1, तो इट बिगिंस फ्रॉम म्यू 0.15 प्लस 1, दैट इज 1.15 into 0.15 by 2 factorial, that is 2, and the next value is 0.01974। आपको ये लगेगा कि ये कहाँ से लिख दी सर ने ये वैल्यू? ये तो ठीक है कि जो म्यू से हमें पता चला, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि ये टेबल में से आया है, मैंने खुद की नहीं लिखी। देखिए सेकंड एरो पे है ये। और बाद में देखिए ये बाद में ये देखिए इसमें म्यू प्लस 1c3 है, म्यू प्लस 0.15 प्लस 1, दैट इज 1.15, बाद में 0.15, और बाद में 0.15 माइनस 1, और 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। ठीक है, ये डेल्टा क्यूब y माइनस 2 की वैल्यू आप टेबल में से लिखेंगे तो ये आएगी 0.0016। बाद में ये देखिए म्यू प्लस 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2.15, 1.15, 0.15, एंड दिस इज 0.15 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आती है? देखिए टेबल में दी हुई है 0.163 के बाद में 00015। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कितना लिखना है? बाद में ये देखिए ये म्यू प्लस 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2.15, 1.15, 0.15, 0.15 minus 1, and last one is 0.15 minus 2 अपॉन में कितने लिखने हैं आपको? 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। ये 0.00015 के बाद में कौन सी एंट्री है टेबल में? देखिए कौन सी है? ये -0.4 टाइम्स 07। यहाँ पे आपको लिखना है माइनस के 0.4 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 0 इंटू 7। बाद में लास्ट वाली देखिए म्यू प्लस 2 दो बार आ गया तो म्यू प्लस 3। देखिए म्यू प्लस 3, म्यू इज 0.15 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3.15, देन 2.15, 1.15,
0.15 -1 ये काउंट के कीजिए 6 ब्रैकेट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 बिकॉज 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखने में 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ रही है 7 10 20 हमने भी देखी थी। और लास्ट वाली एंट्री देखिए माइनस के बाद में क्या आ रही है 0.00016 यहाँ पे आपको ये लिखना है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए आपको आंसर मिलेगा f 1.315 का आंसर मिलेगा आपको कितना मिलेगा 1.9960834 ये आंसर है। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस आते हैं हम देखते हैं। ये देखिए बैकवर्ड से हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आया 99660834 99660 दोनों में सेम आंसर आ रहा है। देखिए एक्यूरेसी दोनों फॉर्मूला की देखिए, समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? बाद में मैं आपको होमवर्क में ये रखता हूँ एग्जाम्पल। From the above table, compute। अब मैं लास्ट वाले में मुझे कौन सी 1.3 और 1.4 के बीच में था ना, लेट मी टेक 1.2 बिटवीन 1.2 एंड 1.3 let me take 26 2634 ये देखिए कि वैल्यू 1.26 टेबल में देखिए कहाँ पे आ रही है 1.26 इज बिटवीन 1.2 to 1.3 सो इट इज समवेयर हियर। ओके, इतना टेबल तो आपको बनाना ही है। समझ में आ रहा है मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ? बाद में x0 आपका कौन सा होगा, ये दिस विल बिकम योर x0 नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये क्या हो जाएगा x0 एंड दिस इज योर x1 सो दिस इज योर y0 एंड y1। तो ये सारा डायग्राम चेंज हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? समझ में आ रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। यस सर। ओके, तो ये कंप्यूट करना है बाय गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, और ये और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये देखिए 1.3 के आगे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 1.97091 ये थी, और 1.4 के आगे 2.15 1.95 to 2.15 और इसके बीच में हमें वैल्यू निकालनी थी। कौन सी वैल्यू है 1.315। सो 1.3 एंड देन 1.315 so it is so now you can see value at 1.315 it also lies between y0 and y1. y0 is 1.97, this is 2.15 and the value we have found is this, see 1.99. you can see that 1.99 is between 1.97 and 2.15। आपको देख सकते हैं कि 1.99 है ना वो इन दोनों के बीच में है, और
ज्यादा नजदीक किसके है 1.97 से ज्यादा नजदीक है ना 1.99। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये देखिए x की वैल्यू 1.31 है, 31 है, यहाँ पे 3 है, 3.0 1.30, ये देखिए 1.30 और वो देन 1.31 1 आ जाता है ना, तो 1.3 से ये वैल्यू x की नज़दीक थी, तो y उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो f आएगा वो इससे नज़दीक होगा। अगर एंड के पास होता तो वो किसके नज़दीक होता, कोई बता सकेगा? तो 1.39 हो के आगे हमें वैल्यू निकालनी होती तो वो कहाँ पे आएगी? कैन एनीबॉडी टेल मी, किससे नज़दीक होगी? टू 2.15 के नज़दीक होगी। अगर 1.39 के आगे वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी तो वो किससे नज़दीक होगी? 2.15 से नज़दीक होगी। समझ में आ रहा है वो मैं समझाने जा रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? मैं आपको पूछ रहा हूँ, जवाब तो दीजिए। So this is goes forward and backward. Now let me put some examples in the homework. You have to write in the journal. The second one is this. The table of values of y equal to e raised to x for certain equidistance value. Value of x given below. Find the value of e raised to x. For x is equal to 0.644. So this is the table x and this is fx. 0.61. That 0.61 value is 1.84, 0431, and 0.62 value it is given 1.85, 89, nine one and 93. So
4790. So this is the table by Gauss forward and Gauss backward. So there are two. Okay, so see, we want to find out f of 0.644. So now you tell me x equal to 0.644 lies among which? See, x equal to 0.644. This is 0.64 है. This is 0.65. So this x lies between these two number. Okay, so this is your x. मुझे x0 कौन सा लेना चाहिए? Can anybody tell me मुझे x0 क्या लेना चाहिए? 0.64. Yes. Yes, this is your x0 and this is your x1. और डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करके वैल्यू निकालिए. आंसर मैं आपको बता देता हूँ. म्यू इक्वल टू यू विल गेट 0.4 and by Gauss forward interpolation formula answer is बैकवर्ड से तो इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको निकालना है. इज इक्वल टू 1.90408227. आप कैलकुलेटर से ये निकालिए कितना आता है. देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, एरर कितनी आ रही है. फाइंड आउट e रेज़ टू, यहाँ फंक्शन मुझे दिया हुआ e रेज़ टू x. टेल मी द आंसर. ये कितना आ रहा है मुझे बताइए प्लीज. कितना आ रहा है? 1.9040. 1.1940.